So hello guys, this is another video and the topic for this video would be the regulation of tone and posture, and we'll be talking about the decerebrate and the decorticate rigidity in particular. So now let's get started. So before starting off, I just want to discuss that the tone and posture in our body, they are controlled at three levels. What are those three levels? Firstly, they are controlled at highest level. Highest level होता है, फिर middle level होता है, and the lowest level. So highest level में क्या क्या include होगा? So we'll include the cerebral cortex. In the middle level, we include the subcortical centers, and also under this subcortical centers, what are included? The basal ganglia, the brainstem nuclei, the subcortical nuclei, and the cerebellum. And the lowest center, they include the brainstem and the spinal cord. Now let us briefly discuss the functions of each one of them. So highest level, the cerebral cortex, that is concerned with the generation of the command for voluntary movements. और basically जो cerebral cortex है ये inhibitory role majorly inhibitory role play करता है, ठीक है, lower motor neurons पे. So inhibitory role by the cerebral cortex, and also it generates the command for the voluntary movements. Middle level subcortical centers तो है, लेकिन क्या include करता है? Basal ganglia. What is the function of basal ganglia? It plans the movement. Then the brainstem nuclei and subcortical nuclei, they adjust the posture, and the cerebellum, which coordinates the movement, particularly the spinocerebellar portion. ठीक है, lowest levels में brainstem and the spinal cord, which are going to execute the movement. अब हमें basically tone posture पढ़ने से पहले two important aspects पता होनी चाहिए कि brainstem और spinal cord के अंदर दो pathways हैं, एक medial या ventral descending pathway और एक lateral pathway. Medial descending pathway में कौन से tracts आएंगे? So we'll have the anterior corticospinal tract, we'll have the anterior corticospinal tract, tectospinal tract, reticulospinal tract, and vestibulospinal tract. Briefly, anterior tectospinal tract, anterior corticospinal tract क्या है? तो हमें पता है कि corticospinal tract cerebral cortex से arise करता है, जिसमें से around 30% premotor cortex से, 30% प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से और 40% सेंसरी मोटर कॉर्टेक्स से फाइबर्स आते हैं, और जो अनक्रॉस्ड फाइबर्स होते हैं दे मेक अप द एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट व्हिच आर रफली 10 to 15%. ओके, और जो क्रॉस हो जाते हैं व्हिच आर 80 to 85% ऑफ द फाइबर्स, दे मेक अप द लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल पाथवे. तो मीडियल वेंट्रल डिसेंडिंग में हमारा फोकस क्या है? एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स. टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट्स जो कि टेक्टम से अराइज करते हैं, प्रीटेक्टल न्यूक्लियस जो ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट है. रेटिक्यूलोस्पाइनल ट्रैक्ट पूरे ब्रेन स्टेम में लोकलाइज्ड है. दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, द पोंटाइन व्हिच इज प्रेजेंट इन द पोन्स एंड द मेड्यूलरी. हम ऑलरेडी आई हैव कवर्ड दिस इन माय वीडियो ऑन द मसल स्पिंडल. So pontine reticulospinal and the medullary reticulospinal. Pontine reticular spinal जो गामा मोटर न्यूरॉन्स है उन्हें स्टिमुलेट करेंगे, सो दे आर फैसिलिटेटरी. बट मेड्यूलरी रेटिकुलोस्पाइनल दे आर इनहिबिटरी टू दी गामा मोटर न्यूरॉन्स. एंड वेस्टिबुलोस्पाइनल जो हमारा वेस्टिबुलर न्यूक्लियस होता है, वी नो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस दैट इज हैविंग सुपीरियर, लेटरल, मीडियल एंड इंफीरियर. तो इंफीरियर वेस्टिबुलोस्पाइनल जो न्यूक्लियस है उसमें उससे क्या राइज करते हैं? वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट. ये इन सब का फंक्शन क्या है? दे आर responsible for the control of the muscles of the trunk and proximal limb, और basically कौन सा group of muscle? Extensor group of muscle. ये part important है specifically कि reticulospinal tract हमारा main motive है for this discussion. So reticulospinal tract, remember these are mainly concerned with the stimulation of the extensor groups of muscle. कहाँ के? Mainly of the trunk and the proximal limbs. Likewise, we are having a lateral pathway जिसमें lateral corticospinal and rubrospinal tract. Rubrospinal tract कहाँ से rise करेगा? Red nucleus से. Remember, red nucleus is present in midbrain at the level of superior colliculus. ठीक है, and it controls the distal group of muscles of the limbs, mainly the flexor group of muscles. So we know that in midbrain you are having midbrain. If I draw the midbrain, sorry, mind the drawing. So dorsally you are having the tectum of the midbrain, then you are having the crus जो है which includes the tegmental portion of the midbrain. Okay, and anteriorly crus present होगा. तो हमारा क्या prime
फोकस क्या है कि टेक्टम ऑफ द मिड ब्रेन में वी नो दैट पोस्टीरियरली एक सुपीरियर कॉलिकुलस प्रेजेंट होता है, 2 सुपीरियर कॉलिकुलस एंड 2 इंफीरियर कॉलिकुलस। तो जो रेड न्यूक्लियस होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इन ट्रैक्ट्स को एक बारी वी कैन टेक अ लुक वाया अ डायग्राम। सो जस्ट लुक हियर, दिस इज अ फिगर आई हैव टेकन फ्रॉम गेनोम एंड इसमें हमें दिखाया है द मीडियल एंड द लेटरल डिसेंडिंग ब्रेनस्टेम pathways which are involved in motor control. So having the medial pathways on the left side, which includes the reticulospinal tract, the vestibular and the tectospinal tract. Okay, so यहाँ से टेक्टम से जो राइज करेगा which is a crossed pathway, tectospinal, then medial reticular formation, the lateral and medial vestibular nuclei से vestibulospinal tracts और reticulospinal tracts, ठीक है। ये किसको कंट्रोल कर रहे हैं? द एक्सटेंसिव ग्रुप्स ऑफ मसल। देन ऑन द राइट साइड यू आर हैविंग for the axial and proximal muscles. Now on the lateral pathway, the rubrospinal that terminates in the dorsolateral horn, which controls the distal group of muscles. और कौन से specific group को? That is going to control the flexor group of muscles. The red nucleus से arise हो रहे हैं and this is again a crossed pathway. जबकि यहाँ पर क्या था? Vestibulospinal tract या uncrossed था, tectospinal that was a crossed pathway. Is this much clear? Then we come on to, we have to talk about the decerebrate type of rigidity and then we have to talk about the decorticate type of rigidity. तो सिर्फ इतना हमें पता होना चाहिए कि decerebration से मतलब क्या है, decortication से मतलब क्या है. So सबसे पहले let us look here. So decerebrate से क्या मतलब है? So आप decerebrate से मतलब ये है कि you are taking a complete transection of the mid brainstem between the superior and inferior colliculus. तो हमने देखा कि अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूं just for the purpose of understanding, so if these are the superior colliculus, inferior colliculus mid brain में, तो आप इसको ऐसे ट्रांसेक्ट कर रहे हो at a mid collicular section between the superior and the inferior colliculus. इससे होगा क्या? इससे जो आपका cerebral cortex है, जो mid brain का upper part है, जिसमें हमने कहा था अभी कि रेड न्यूक्लियस कहाँ पर आएगा? इसी वाले पार्ट में आएगा, सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे. तो ये सारे अलग हो जाएंगे और जो नीचे ब्रेन स्टेम एंड द अपर पोर्शंस ऑफ द पॉन्स ये अलग हो जाएंगे. तो ये इससे होगा क्या? जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो इनहिबिट कर रहा था. और रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट का दो फंक्शंस है. पहला तो ये फ्लेक्सर टोन को एनहांस करते हैं, दूसरे एक्सटेंसर टोन्स को इनहिबिट करते हैं. तो जो एक्सटेंसर टोन्स इनहिबिट हो रहा है, इनहिबिट ये सब मिलके कर रहे हैं, अगर ये जब कट जाएगा तो नीचे वाले सारे रिलीज हो जाएंगे फ्रॉम द इनहिबिशन. सो एज अ रिजल्ट उनकी फंक्शनिंग, एक्सटेंसर टोन को जो स्टिमुलेट कर रहे हैं सेंटर्स, उनकी फंक्शनिंग एनहांस हो जाएगी. दिस इज मेंट बाय डीसेरिब्रेट. डीसेरिब्रेशन का मतलब क्या है? कि कट कर देना. किस लेवल पे? मिड कॉलिकुलर लेवल पे. और डीसेरिब्रेशन इसी को हम कहते हैं शेरिंगटोनियन डीसेरिब्रेशन. शेरिंगटोनियन डीसेरिब्रेशन. एक टर्म होती है डीकॉर्टिकेशन. डीकॉर्टिकेशन, ठीक है. सो डीकॉर्टिकेशन में क्या करते हो आप वी नो दैट सेरिब्रल कॉर्टेक्स, फिर हमने कहा सब कॉर्टिकल सेंटर्स, देन द ब्रेनस्टेम, ठीक है. तो हम सिर्फ सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हटाते हैं, विच मीन्स आपका रेड न्यूक्लियस स्पेयर हो गया. रेड न्यूक्लियस अभी भी फंक्शनल है, ठीक है. अब हम ये सब कर क्यों रहे हैं? व्हाट इज द पर्पस? तो हमने देखा कि we received certain patients, ठीक है. और उन पेशेंट्स में ये हमने क्लिनिकल फीचर्स देखे. फर्स्ट पेशेंट आप देखो कि इसके अंदर क्या है? नेक एंड हेड इज extended, then you can see the entire the lower limbs, these are in extended position. tip medial aspect में point out कर रहे हैं. और जो आपके फोर आर्म है ये भी extended position में, लेकिन जो fingers हैं these are in extended and semi pronated form. so आप ये read भी कर सकते हो under the diagram. So we can see that first patient में हुआ क्या है? So decerebrate position posturing हुई है, ये तो हमें पढ़ के पता चला, बट इसमें होता क्या है? extended toes pointed inwards, lower extremities are extended with toes pointed inwards and upper extremities are also extended with the fingers flexed and forearm pronated. और दूसरे patient में क्या है? जो lower limbs है ये extended है, same है, लेकिन upper limbs these are in flexed condition, ठीक है. तो दूसरे केस में क्या हुआ? lower limbs these are extended with the points pointed with the toes pointed slightly inwards and the head is in extended position, but what is happening? the upper limbs these are in flexed position. तो इन सबको explain करने के लिए the concept of decerebrate and decorticate rigidity that was found.
ओके, तो अब हम इसे एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ते हैं. सो दिस इज अ फ्लो चार्ट विच आई हैव टेकन फ्रॉम गेनोम. एंड इसमें हमने करा क्या, सबसे पहले हमने क्या किया, सो यू कैन सी यहाँ सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, उसके बाद इस लेवल पे यू आर हैविंग द रेड न्यूक्लियस है. मेनली चीजें फोकस कर रही हूँ, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यहाँ पर रेड न्यूक्लियस है. देन यू आर हैविंग दी रेटिकुलोस्पाइनल फाइबर्स तो हैं कौन से, एक्साइटेटरी रेटिकुलर स्पाइनल फाइबर्स पॉन्स के, जो कि गामा मोटर न्यूरॉन्स, जो गामा इफरेंट एक्सटेंसर गामा मोटर न्यूरॉन है, उन्हें जाके स्टिमुलेट करेंगे. और होगा क्या, ये गामा मोटर न्यूरॉन्स फिर जाएंगे मसल स्पिंडल के पोलर एंड्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे सेंट्रल पोर्शन ऑफ मसल स्पिंडल स्ट्रेच होगा और वो एफरेंट्स कैरी करेगा फाइनल कॉर्ड में, और फिर जाके टर्मिनेट किस पे करेगा, एक्सटेंसर अल्फा मोटर न्यूरॉन्स पे. और उस अल्फा मोटर न्यूरॉन स्टिमुलेट होंगे क्योंकि स्ट्रेच रिफ्लेक्स स्टिमुलेट हुआ, और एज अ रिजल्ट ये मसल जो है विच इज द एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल दैट विल कॉन्ट्रैक्ट, इससे रिजिडिटी हुई. ठीक है, लेकिन ये इनहिबिट किस से हो रहा है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से इनहिबिट करता है. हियर वी आर हैविंग द पुरकिंजी सेल्स व्हिच मींस दिस इज अ डायग्राम ऑफ द सेरिबेलम. ठीक है, वी नो पुरकिंजी सेल्स, दीज आर इनहिबिटरी सेल्स प्रेजेंट इन द सेरिबेलर कॉर्टेक्स और रेड न्यूक्लियस से. अब हमें समझना क्या है कि पहला हमने क्या किया, पहले हमने एक्सपेरिमेंटल एनिमल में, सो वी हैव टू डिस्क्राइब दिस ऑल इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल. और एक्सपेरिमेंटल एनिमल शेरिंगटन ने लिया कौन सा था, दैट वाज द कैट. ठीक है, व्हिच इज अ मैमल. तो उसने क्या किया, पहले मिड कॉलिकुलर लेवल पे एक सेक्शन लिया, विच इज हियर रिप्रेजेंटेड बाय ए, डैश लाइन ए से रिप्रेजेंट हो रहा है, मिड कॉलिकुलर लेवल पे सेक्शन लिया. इससे हुआ क्या, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स इनहिबिट कर रहा था वो रोल चला गया, जिसकी वजह से अब जो एक्साइटेटरी इंपल्सेस हैं पॉन से, वो ज्यादा एक्साइट करेंगे, किसे, गामा मोटर न्यूरॉन से. और वाया स्ट्रेच रिफ्लेक्स फाइनली अल्फा मोटर न्यूरॉन स्टिमुलेट होंगे और मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिजिडिटी होगी. सो लीजन या मोटर रिस्पॉन्स हमने जब ए लिया तो क्या हुआ, एक्सटेंसर रिजिडिटी हुई ऑल लिम्स में, दिस इज कॉल्ड डीसेरिब्रेट रिजिडिटी. अब दूसरा हम क्या कर रहे हैं, हमें पता कैसे चला कि ये स्ट्रेच रिफ्लेक्स के थ्रू है, तो हमने इसे चेक करने के लिए एफरेंट जो डॉर्सल रूट गैंग्लिया है, डॉर्सल रूट है, उसे हमने ट्रांसेक्ट कर दिया, उसे हमने कट कर दिया. तो इससे हमें क्या पता चला, तो मसल रिलैक्स कर गई अचानक से, तो इससे हमें पता चला कि ये सारा स्ट्रेच रिफ्लेक्स का काम है. पॉन्स ने एक्साइट किया गामा मोटर न्यूरॉन्स को, फिर गामा मोटर न्यूरॉन्स ने स्पिंडल को एक्साइट किया, और स्पिंडल से एफरेंट गया, तब जाके अल्फा मोटर न्यूरॉन स्टिमुलेट हुआ. क्योंकि एफरेंट्स ही नहीं जा रहे, इसलिए अल्फा मोटर न्यूरॉन स्टिमुलेट नहीं होगा और रिजिडिटी नहीं हो पाएगी. ठीक है, also to understand it better please refer to the video on muscle spindle. so यहाँ क्या हुआ, अल्फा मोटर न्यूरॉन्स नहीं कर पा रहे कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए क्या हो रहा है, सी ए एंड बी, जब दोनों ए पे भी ट्रांसेक्शन किया और बी पे भी किया, रिलैक्सेशन ऑफ द एक्सटेंसर रिजिडिटी हुआ विद सेक्शन रूट. अब एक और हमने चेक करने के लिए क्या किया, ए को हमने ट्रांसेक्ट तो किया, इस बार बी को वैसे का वैसे रखा, लेकिन सी को ट्रांसेक्ट कर दिया. सी क्या था, सेरिबेलर कॉर्टेक्स में पुरकिंजी सेल्स इनहिबिटरी कंट्रोल दे रहे थे वेस्टिजियल न्यूक्लियस पे, जो कि फाइनली वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट पे जा रहा था. ठीक है, फाइनली किस पे जा रहे थे, वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट. अब इंपॉर्टेंट नोट है, वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट किस पे एंड कर रहा है, अल्फा मोटर न्यूरॉन्स पे. किस पे एंड कर रहा है, अल्फा मोटर न्यूरॉन्स पे. इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आपने ए तो काटा, ए से क्या हुआ था, पूरी बॉडी में एक्सटेंसर रिजिडिटी हुई थी, लेकिन सी को भी काट दिया, तो जो इनहिबिटरी कंट्रोल था वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई पे सेरिबेलम का, वो हट गया. एज अ रिजल्ट फिर से रिजिडिटी इंक्रीज हुई, लेकिन इस बार इंक्रीज किसकी वजह से हुआ, अल्फा मोटर रिजिडिटी हुई. ठीक है, पहले क्या था, गामा लूप की वजह से हो रहा था, इस बार अल्फा मोटर रिजिडिटी हुई. अब क्योंकि अल्फा मोटर रिजिडिटी है, इसलिए अब अगर ए बी और सी तीनों को काटेंगे तो ये रिजिडिटी नहीं जाएगी. क्यों, क्योंकि बी क्या कर रहा था कि गामा जब स्ट्रेच रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो रहा था तब जाके उससे हटा रहा था सिंपली. ठीक है, तो अब यहाँ देखो ए और सी को काटा तो स्लाइट एनहांसमेंट ऑफ द डीसेरिब्रेट रिजिडिटी हुई एज कंपेयर टू जस्ट ए. और ए सी और बी को काटा, सो देयर इज नो रिलैक्सेशन ऑफ डीसेरिब्रेट रिजिडिटी. इससे पता क्या चला कि जब हम सेरिबेलम को काट रहे हैं तो वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट अल्फा मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर रहा है. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डीसेरिब्रेट रिजिडिटी. अब आता है डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी क्या होता है. तो हमने, अच्छा, डीसेरिब्रेट रिजिडिटी में हम यहाँ पर लेट अस टेक अ लुक. सो फर्स्ट जो हमने डायग्राम देखा था कि both the upper and the lower limb, both of them, these are in the extended positions. ठीक है, this case this is of decerebrate rigidity.
पूरी बॉडी में क्या हुआ, एक्सटेंसर टोन हुआ। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द रिलीज फिनोमेना। रिलीज फिनोमेना का मतलब क्या हुआ, जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो इनहिबिट नहीं कर सकता अब लोअर पोंटाइन रेटिकुलर सेंटर्स को, जो कि एक्साइट करते हैं एक्सटेंसस को, तो इसलिए पूरी बॉडी में एक्सटेंसर टोन हो जाते हैं। लेकिन दूसरे पेशेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, विच इज द डीकॉर्टिकेट टाइप ऑफ रिजिडिटी, इसमें क्या हुआ, इसमें फ्लेक्शन हमें दिख रही है। इसका मतलब क्या है, कोई ऐसा सेंटर अभी हमारे पास है जिसमें फ्लेक्शन हो सकती है, जो फ्लेक्शन करवा रहा है। तो इस बारी हम एक्सप्लेन करते हैं इसे कि इस बारी कहाँ हमने ट्रांसेक्शन कहाँ हुआ है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के लेवल पे हुआ है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के लेवल पे सेरिब्रेशन हुआ, मतलब सिर्फ इंजरी टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स हुई है, जो लोअर सब कॉर्टिकल सेंटर्स थे वो स्पेयर हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट आउट ऑफ विच इज द रेड न्यूक्लियस। रेड न्यूक्लियस इस बारी फंक्शन करेगा, और रेड न्यूक्लियस क्या कर रहा था, ये कुछ पार्ट तो इनहिबिट कर रहा था एक्सटेंसर्स ग्रुप को, और ये किसको स्टिमुलेट करता है, फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल्स को। देखो, इट इज स्टिमुलेटिंग द फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को। सो इस रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट की वजह से फ्लेक्शन होगा अपर लिम्स का, ठीक है। और क्योंकि ये बहुत माइल्ड इनहिबिट कर रहा था, इसलिए एक्सटेंसर लोअर लिम्ब का परसिस्ट करेगा। सो आई होप द डिफरेंस बिटवीन द डीकॉर्टिकेट डीसेरिब्रेट रिजिडिटी क्लियर है। एक बारी आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट। डीसेरिब्रेट रिजिडिटी में हमने कहाँ काटा, हमने मिड कॉलिकुलर लेवल पे ट्रांसेक्शन किया, जिसकी वजह से जो मिड ब्रेन का पार्ट, जो रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट इंक्लूडिंग द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, दोनों डैमेज हुए। इसकी वजह से क्या हुआ, पूरा एक्सटेंसर टोन आ गया। लेकिन डीकॉर्टिकेट में क्या किया हमने, वी हैव ओनली ट्रांसेक्शन इज मेड ओनली इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिसकी वजह से रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट इंटैक्ट है, जिसकी वजह से फ्लेक्शन अपर लिम्स में आएगा और एक्सटेंशन बाकी जगह पे। देन एक और चीज आती है, वन इज द शेरिंगटोनियन टाइप ऑफ डीसेरिब्रेट। तो डीसेरिब्रेट और डीकॉर्टिकेट में डिफरेंस समझ आ गया। देन देयर इज अनदर थिंग व्हिच इज कॉल्ड एज, एक तो हो गया क्लासिकल शेरिंगटोनियन डीसेरिब्रेट रिजिडिटी, हमने देख लिया, लेट अस रिवाइज इट। इट इज अ ट्रांसेक्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम बिटवीन द टू कॉलिकुलाई, या फिर इसे हम क्या कहेंगे, मिड कॉलिकुलर लेवल पे ट्रांसेक्ट किया हमने। इसमें एक्सपेरिमेंटल एनिमल कौन सा था, दैट वाज द कैट, मैमल थी एक। It develops due to the release phenomena which increases the gamma motor neuron activity. Therefore, this is called as the gamma rigidity. और हमने देखा था कि जब हमने A और C दोनों को काटा था, रिमेम्बर, C और A और C दोनों को काटा था, there is slight enhancement of decerebrate rigidity. So यही यहाँ पर mention भी है कि removal of the anterior lobe of the cerebellum that increases this rigidity. क्यों? क्योंकि सेरिबेलम इनहिबिटरी कंट्रोल वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट को दे रहा था, ठीक है, वो हट जाता है। देन इसके अलावा हमने क्या करना था, ये डेमोन्स्ट्रेट करना था ह्यूमंस के अंदर। अभी तो हमने कैट में किया था, अब हमें ह्यूमंस में डेमोन्स्ट्रेट करना था। तो बहुत टफ था, बहुत फेटल था ये, कि अगर हम मिड ब्रेन के लेवल पे पूरा ट्रांसेक्ट करेंगे, तो उसको हटाने के लिए व्हाट दे डिड, दे टाइड दी carotid arteries and the basilar artery at the junction of the pons in medulla. Similarly, हमें दिखा कि पूरी बॉडी में एक्सटेंशन हुआ, both the upper limb and the lower limb. इसका मतलब ये क्या है, this was decerebrate rigidity and not decorticate rigidity, ठीक है। And this was performed by this ischemic type of decerebration. This is performed by Pollock and Davis, जबकि classical शेरिंगटोनियन ने किया था, ठीक है। इसमें हमने क्या किया था, काटा नहीं था, सिर्फ इस्कीमिया कॉज कर दिया था। अब इसमें क्या हो रहा है, अब हमने इसमें भी डॉर्सल रूट गैंग्लियन और डॉर्सल रूट को कट करके देखा कि क्या ये गामा न्यूरॉन की वजह से हो रहा है, गामा मोटर न्यूरॉन या गामा लूप की वजह से। सो आंसर वाज फाउंड नो, अभी इसमें रिलैक्सेशन नहीं हो रही। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द अल्फा टाइप ऑफ रिजिडिटी एंड दिस इज नॉट अफेक्टेड बाय द रिमूवल ऑफ द एंटीरियर लोब ऑफ द सेरिबेलम। क्यों? क्योंकि एंटीरियर लोब ऑफ सेरिबेलम अल्फा मोटर न्यूरॉन की वजह से बढ़ा रहा था रिजिडिटी, और ये तो पहले से ही अल्फा मोटर न्यूरॉन की वजह से है रिजिडिटी। We have already talked about the decorticate type of rigidity, when the whole of cerebral cortex that is removed, but basal ganglia and brainstem they are left intact. Decorticate rigidity में anterior, I am repeating it, decorticate rigidity में anterior जो upper limbs हैं, these are in flexed position while the lower limbs are in extended position. जबकि both शेरिंगटोनियन and ischemic decerebration में दोनों में ही both upper and lower limbs these are in extended position, ठीक है। Before concluding, I would like to show again this. So ये क्या है? This is the decerebration and this is decortication.
तो हम देख सकते हैं कि डी कॉर्टिकेशन में फ्लेक्शन है और एक्सटेंशन थोड़ा कम है. क्यों? क्योंकि रेड न्यूक्लियस स्पेयर हो गया. इसलिए आई फाउंड एन एमसीक्यू विच स्टेटेड दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड फॉल्स. और उसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि उसमें दे रखा था डी कॉर्टिकेट इज रिजिडिटी इज ग्रेट और डी सेरिब्रेट, या डी सेरिब्रेट ज्यादा है डी कॉर्टिकेट. तो आंसर इज डी सेरिब्रेट रिजिडिटी ज्यादा होती है डी कॉर्टिकेट से, क्योंकि डी सेरिब्रेट रिजिडिटी में जो इनहिबिटरी कंट्रोल लॉस होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स तो हटता ही है, साथ में रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट भी हट जाता है. लेकिन डी कॉर्टिकेट में रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट इंटैक्ट रहता है. इसलिए डी सेरिब्रेट रिजिडिटी दैट इज मच ग्रेटर देन द डी कॉर्टिकेट रिजिडिटी. And this was all about my video. So thank you guys, and please do like, share and subscribe to the channel. Thank you.